On Cricket Stadium. So the news from the center is that Sparko Paints have won the toss and they have elected to bowl first. अंपायर नासिर हुसैन के एंड से यहाँ ये मुकाबला शुरू होने को है। काफी तेज हवा चल रही है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और प्ले का इशारा आ गया अंपायर की जानिब से। एक स्लिप है, डीप थर्ड है, जाने दिया शाहजेब ने। इस बार अच्छी डिलीवरी, विकेटें तो उन्होंने 3 ली थी, शायद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई हो। शानदार बॉलिंग ऑफ स्टंप के बाहर, वही चैनल है। खूबसूरत ड्राइव, आला रानाई नजर आई, होशरुबा टाइमिंग थी साइम अयूब की। हुक शॉट खेल गया है, फील्डर वहां पर कोशा है और ये ले गए कैच। जी हां, नाकाबिले यकीन रजा उल्लाह थे जिन्होंने इससे पहले बेहतरीन बॉलिंग स्पेल किया और अब ये लाजवाब हैरत अंगेज कैच लिया है लॉन्ग लेग पर। Towards the better place. Meanwhile, Saim Ayub has been playing airy-fairy. Into the system. He'll get another boundary. That's poor bowling. Sometimes the ball doesn't spin, sometimes it skids. And this is cleaned up off the inside edge. Trying to go through the covers. And the inside edge takes it to the stumps. And it is curtains for Hasibullah. But then they capitalize on it. Oh, he's whacked that one with authority. So there is nothing like time in the middle. And this is taken. Beautifully taken at short mid-wicket. And Usman paying the price for trying to keep it down. He should have just hit it up and above. He just tried to keep the ball down. The ball was already higher than his head height. ये गेंद शॉट थी और विकेट। जी हां, इसी पोजीशन पर रजाउल्लाह ने कैच किया था और अब साइम अयूब आउट हुए मुबस्सिर खान के हाथों। Oh, that's a strange sort of dismissal. You wouldn't expect anything to happen like that. When your team needed you the most, you weren't present. Full paged, up in the air, and over the boundary for 6 runs. So a University of Lahore 6 from the bat of Hassan Nawaz. What a good shot under pressure. Yeah, that goes for a boundary. There's an opportunity. Randhawa almost got to it. Excellent shot. That is savage. जिसने काफी दबाव डाल दिया है फिल वक्त। ये काफी एयर दी और सेलिब्रेशंस हैं। बैट्समैन अपनी जगह खड़े हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पे तो खासा बाहर है पाओ और तो दबाव डाला हुआ है। अब ये है ज़ाहिर है कि कैसी अटेम्प्ट थी और इसमें कामयाबी हुए। एक्सप्रेशन है। इस बार बड़ा हिट मारा है। हसन नवाज बाहर निकले और इसको बहुत शानदार टाइमिंग के साथ पहुंचा दिया उन्होंने बहुत दूर। बहुत बड़ी गेंद थी और उसके साथ वही रवैया अख्तियार किया जो कि किया जाना चाहिए था। आउटसाइड लेग स्टंप। इस बार इस गेंद को डैब किया, बहुत फाइन, बहुत शानदार शॉट है ये। बॉल की पेस का अच्छा इस्तेमाल और 50 रन मुकम्मल हसन नवाज के। बहरहाल ये एक शॉर्ट गेंद जिसको बहुत उम्दगी से टाइम किया है वसीम जूनियर ने और कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। और इस वक्त सूरत हाल काफी गंभीर थी इनके लिए और थोड़ा रिलैक्स हुए इस स्ट्रोक को खेलते हुए। 4 रन हो गए। Awareness was spot on, but this time Shaheen Shafridi is spot on with his outside off stump length that went straight into the hands of a wicketkeeper. Has he gloved it? Yes, he has. Another one bites the dust. That's a nice hit. That's a big hit. This time it's up in the air and the fielders are running under the ball and he takes it. What a good catch this is by Abdul Samad. We are at the Multan Cricket Stadium for this very important encounter where Sparko Paints Pakistan Gold will have to bat really well to qualify for the finals. He's all set and he says, let's play. First delivery of this very important run chase. Shamil Hussain to face Shahnawaz. And straight away, what a start. Majestic. Simply stood and delivered. Taken care of. How beautiful. What a shot. Of a length, and Dhani is made to look ordinary in 2 out of these 3 balls.
Oh, that is box office. Absolute cinema. For a huge hit. Just have a look at this. How relaxed that body is. Right, Shahnawaz Dhani. Oh no, he hasn't timed it. He hasn't timed it. He hasn't timed this one. He's toe-ended one straight to Wasim Jr. This is a big, big moment in this run chase. And he's been among the wickets. The short ball has not come as he expected from the surface. And luckily for Wasim Jr., he was able to take it. I think the ball went in the lights for a bit. And that is where he was not clear. But important. Shamil Hussain is gone for 15. Inside edge is it. Inside edge is it. Oh, Shahnawaz Dhani is furious. He is offered a chance or no? It's just cleared the fielder. There is no slip. There is no slip. Oh, that's a fantastic shot. Cuts one. And look what happened. Look what happened. This is flicked. And this is big shot. Just a bounce and it goes over the ropes for a boundary. Another pull shot. With authority this time. Another great race work, this time from Kamran Ghulam. At least a couple. Ali Raza doing the chase, and now they come back for the third. This is good running. ये बड़ा जरूरी होता है. ये ऊंची शॉट ऑफ साइड पर फिजा में बुलंद हुई है. दो फील्डर पीछे हैं, लेकिन किसी के हाथ गेंद नहीं लगी. और उसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि ये स्क्वायर बेहतर खेल सकते हैं, क्योंकि छोटे कद के खिलाड़ी हैं, इसलिए लेंथ को जल्दी जांच लिया. यहां पर ये मौका है, विकेट गिरनी चाहिए और अली रजा ने इसे हाथ से नहीं जाने दिया. पुल करने के लिए गए, गेंद स्किड होकर ज्यादा तेज आई. स्पिनर के लिए मदद मौजूद है. लगता है वैसे ही गेंद रुक कर आई. इसको पुल करने गए, क्या करने गए, लगता है इसको ऑन साइड पर कमिट हो चुके थे, लेकिन गेंद बैट के बाहर वाले किनारे को लगी और शॉर्ट मिड ऑफ पर गई, जहां पर बड़ा अच्छा काम किया, महफूज साथ लिया अली रजा ने और साइम ने यह कामयाबी हासिल की. तो इस तरह अखलाक 15 रन बनाकर आउट हुए 59 for 2. जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ न कुछ स्पिनर्स के इस विकेट पे मौजूद, और ये मुश्किल गेंद थी इनके लिए, पहली ही गेंद. और यहाँ पर इस वक्त ये चैंपियंस कप हो रहा है. ऊंची गेंद केडी इस बार और एक और विकेट. तो इस तरह लगता है कि अब तारिक मोड़ आया है, दिलचस्पी है. और ये तीसरी विकेट जो कि हासिल की है वसीम जूनियर ने. आसानी से कैच किया. कतई तौर पर ये अच्छा शॉट नहीं था. टीम को जरूरत थी. 26 गेंदों में 30 रन बनाए, 61 पे 3. ठीक ही लगा. वसीम जूनियर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और देखना होगा क्या वो पहुंच पाए, हटा सके गेंद को बर वक्त, या इसको छू चुकी थी. यहाँ देखिए, अब अपना कदम आगे कर लिया है. यहाँ से थोड़ा मुबहिम है, को वहां से दिखाई नहीं दे रहा. जी हाँ, ये बिल्कुल एड़ी लगी हुई है. जिस वक्त ये गेंद पीछे हटा रहे हैं तो ममनुआ जगह पर उनका पांव लग चुका था. होल शॉट, सनसनीखेज 4 रन. जैसे ही शॉर्ट डिलीवरी नजर आई, हैदर को झपट पड़े इस पर. बाहरी किनारा लगा, थर्ड मैन के फील्डर नहीं रोक सके. दौड़ कर आए अली रजा, लेकिन गेंद तेज से तेज सर होती चली गई. और ये ज़ियाफूड चौका लगाने के लिए गए और मिल गई कामयाबी साद को. As this is swept from Haider Ali, he says, no, I'm good too. He finds a loose delivery from Saim. Runs, surely runs. No, this is decide against it. They were thinking for the third. Oh, that's a big one. Big one. Yes, it is a big one. Comfortably. And a couple of runs, still has no ownership. Belongs to the batter only. He's been brought back to break this partnership, but they're just milking him, milking the bowling lineup. Another 2 for Haider Ali. Oh no, that hit him on his helmet. Again, just took his eyes away. Saad Khan. To go out of the way of the bouncer, because you never sure of the bounce. Just have a look at this, and this jagged back in off the pitch. The ball came in and he had no escape
because he wasn't in any sort of position to leave or to play the ball. So he was trapped into a ball. Currently in the system too. He's in the air, but fielder is not gonna get there. Beautifully delivered. He's appealing for it. He's not gonna get it. Again appealing for it. Again appealing for it. हैदर अब्दुल समाद आगाज करते रहे लेकिन आउट होते गए। एक और शॉट गेंद थी और पुल करने में कामयाब हुए। 4 रन के लिए 2 फील्डर थे तैनात। यहाँ एक फायदा हो सकता है कि गेंद अगर लेग स्टंप पर आए और इसे महज टर्न करना ही काफी था हैदर के लिए। 50 रन हालांकि हसन नवाज ने बनाए और ये खराब तर फील्डिंग थी। साइम अयूब इस गेंद को झुककर अपने हाथों में नहीं ले सके और 4 रन का इजाफा। गाफिर सोबा कहा करते थे कि मेरे 6 छक्के बहुत लोग याद करते हैं, मैंने और भी बहुत कुछ किया। इस गेंद को साउथ अफ्रीका से बैकवर्ड स्क्वायर लेके जाने खेले हैं और यहाँ पर एक और बाउंड्री हो गई है। तो आतर के साथ जो लगता है कि मिस फील्डिंग भी हुई। 49 पर हैदर थे, अब 50 पर हैदर हैं और इस मुकाबले में ये दूसरे निस्फ सेंचुरी स्कोरर बन गए। 18वीं उन निस्फ सेंचुरी स्कोर की लिस्ट है क्रिकेट में। तो अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है बैटिंग के शोबे में और इस बार लगता है कि आउट हो जाएंगे। तो इस तरह साद अपनी विकेट खो बैठे लेकिन उन्होंने अपना काम तमाम किया। अच्छी बैटिंग की, अच्छा तालमेल कायम किया हैदर के साथ और 7-33 रन बनाकर पुल करने की कोशिश में स्क्वायर लेग पर आउट हुए। देखिए हुक करने के लिए गए, लेट हो गए, रफ्तार पर मात खाई और अच्छा कैच लिया उन्हीं के हमनाम साद मसूद ने। साद खान 33 रन बनाकर गए, अच्छी पार्टनरशिप में शामिल रहे। 147 पर 4। मिड ऑन मिड ऑफ पर खिलाड़ी दायरे में है और फ्लिक किया और यहां हाथों में खेल गए। अली रजा देर से आए और जल्दी विकेट ले गए। ये देखिए अंदाज बेहतर था लेकिन नहीं, आपने हवा में गेंद को खेला है और इसका खुमियाजा समत को भुगतना पड़ा। अपनी विकेट खो बैठे। अली रजा को विकेट हासिल हुई, सिर्फ 3 गेंदें खेली और 0 पर आउट हुए। तो इसका 148 for 5। और हैदर ने इस बार धमक सुनाई दी उनके बल्ले से और ये उन्होंने फलक शिगाफ छक्का लगा दिया मिड विकेट के पार। बढ़ के दूं एक और ये देखिए जिस तरीके से प्रेशर को रिलीज किया है, बिल्कुल बैट के दरमियानी हिस्से से लगता हुआ और ये विद द पर्पस, विद अथॉरिटी, कन्विक्शन। और यहां पर बाउंस आउट करना चाहते थे वसीम जूनियर लेकिन मुबस्सिर तैयार थे। अब अली रजा है, इस गेंद को साउथ अफ्रीका से खेल दिया है ऑन साइड पर। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा बनाएंगे सर पर दौड़ेंगे गेंद के पीछे, बीटर्स को रोक नहीं पाएंगे। गेंद 4 रन के लिए बाहर जा चुकी है। कल तक कि पाकिस्तान गोल्ड के लिए भी रास्ता बन सकता है। और हैदर अली ने ये बेहद जोर का छक्का लगाया। जो अटेम्प्ट की वो चौकिया छक्के के लिए गई और ये देखिए कितना उम्दा फॉलो थ्रू था। और इस गेंद को जिस तरीके से उन्होंने हिट किया, लगता है कि बाउंड्री छोटी पड़ सकती थी और बहुत दूर गेंद चली गई। और जाविये से देखिए कितना अच्छा, इसे उनको आप दोष नहीं दे सकते। और मुबस्सिर ने ये विनिंग शॉट खेल दिया मिड विकेट की जानिब, 4 रन। और इस तरह पाकिस्तान गोल्ड ने तमाम तवक्कुआत के खिलाफ 2 मैच हारने के बाद फाइनल में कदम रख दिया है। उन्होंने 5 विकेटों से शिकस्त दी पाकिस्तान वाइट्स को।